الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج انشاءاللہ ہم اپنا فقہ کا کورس شروع کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں نے لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج ہم احناف فقہ حنفی کا کورس کریں گے. اور اس میں نے پہلے سے آپ کو جو بتا دیا تھا، میں ایک بار سرسری ریپیٹ کر کے انشاءاللہ انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں کہ اس کورس میں ہم نے ایک کتاب کو بنیاد نہیں بنایا، کئی ایک جو بنیادی کتابیں ہیں اس کو اس میں ایڈ کیا ہے. جیسے کہ المبسوط ہے، المبسوط لسرخسی ہے جس کا شرح امام سرخسی رحمہ اللہ نے کیا ہے. اسی طریقے سے کتاب تحفہ الفقہا ہے، اسی طریقے سے المحیط ہے، اسی طریقے سے ہدایہ ہے، العنایہ ہے، البنایہ ہے، درالاحکام ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے کا جتنا بھی معتبر ترین حنفی فقہ کا کتاب تھا اس سب کو ہم نے اس میں مرج کیا ہے. اس لیے کیونکہ ایک کتاب میں ہر مسئلہ نہیں ملتا ہے، اور کیونکہ ہم کتاب الطہارت پہ ایک کورس کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے جتنا بھی میجر رولنگس ہے وہ آ جائے. قیاس اور فتویٰ نہیں، میجر رولنگس آ جائے. ٹھیک ہے، تو فقہ آپ پڑھ رہے ہیں تو انٹروڈکشن میں آپ کو بنیادی طور پہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فقہ ہے کیا اور اس سے ہوگا کیا. اور اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات میں بتا دوں کہ لاسٹ کلاس میں بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ جب اردو میں لاسٹ جو ہمارا کورس ہوا تھا حنبلی مذہب کے اوپر، تو اس میں بہت کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اردو کا کچھ الفاظ تھا جو تھوڑا سا مطلب آپ سمجھ رہے کہ ڈیفیکلٹ بہت سے لوگوں کے لیے تھا. تو اس کورس میں ہم نے سوچا کہ اردو اور انگلش کے حساب سے ہم ایکسپلینیشن کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ انگلش یہاں پر الحمدللہ سب شیکسپیئر کے جو ہے نا یہاں پر سب ہے تو وہ الحمدللہ سمجھ جائیں گے. تو انگلش اور اردو میں ہم انشاءاللہ چلیں گے. موسٹلی آپ بول سکتے ہیں انگلش ہی کنسیڈر کریں گے، کچھ جگہ اردو کنسیڈر کریں گے، اور کچھ جگہ مجبوری رہے گا تو وہاں پر عربک یوز کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، جو اصطلاح ہے. تو سب سے پہلے سمجھ لے فقہ میننگ. کچھ اگر آپ کو بولنا ہے تو آپ اس کو لکھ کے نا پیپر یہاں پر دے دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بیچ میں اگر آپ انٹرپٹ کریں گے تو پھر مجھے بھی کنفیوژن ہوگا تھوڑا بتانے میں. تو آپ میں سے کسی کو بھی اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ لکھ کے آرام سے دے سکتے ہیں، اینڈ میں انشاءاللہ اس کا جواب ہم دے دیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ میں سے جو ماشاءاللہ کاپی وغیرہ لے کے آئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن لکھ سکتے ہیں. فقہ میں آپ دو پارٹ لکھ سکتے ہیں، میننگ اینڈ اپلیکیشن. فقہ کا معنی اور کس پر اپلائی ہوگا، کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ ہم دیکھیں گے. تو فقہ زیادہ لمبا چوڑا ہم انٹروڈکشن کو نہیں کریں گے، کوئی تفصیلی کورس تو ہے نہیں، اور بہت سے لوگ یہاں پر ہیں جو بالکل مطلب نئے ہیں تو ان کے لیے زیادہ مشکل جو ہے نا نہیں کریں گے. تو فقہ دا ٹرم فقہ لٹرلی مین انڈرسٹینڈنگ. فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ، صحیح سمجھ، گہرا سمجھ. ٹیکنیکلی فقہ کا مطلب یعنی اصطلاح میں فقہ کا مطلب، شرعی اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام کو نکالنا دلیل کے ساتھ. شریعت کے احکام کو دلیل کے ساتھ نکالنا، اس کو کہتے ہیں فقہ. ٹھیک ہے، اس کا اگزامپل آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک شخص حدیث کو صحیح ضعیف کر دے تو یہ فقہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح ضعیف تو اس نے کر دیا، دلیل تو اس کو پتہ ہے لیکن احکام اس نے نہیں نکالا. اسی طریقے سے ایک شخص فقہ کے اختلاف کو پڑھ کے ویب سائٹ یوٹیوب سے دیکھ کے وہ فقہ کے اختلاف کو دیکھ لیا اور وہ ایک مسئلہ نکال لیا، احکام اس کو معلوم چل گیا، لیکن اس احکام پہ اس کے پاس دلیل کچھ نہیں ہے، تو یہ بھی فقہ نہیں ہے. فقہ کا مطلب ہوتا ہے دلیل کی بنیاد پہ احکام کو نکالنا. یاد رہے آج کے زمانے میں بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے وہ احکام نکال لیتے ہیں اور پھر اپنے احکام کے سپورٹ میں وہ دلیل ڈھونڈتے ہیں، تو یہ فقہ نہیں ہے. اب رولنگس نکالنا کہاں سے؟ آصف بھائی گھر سے نکال لیتے ہیں رولنگس نکالنا ہے ہمیں قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے، امت کے اجماع سے اور قیاس سے. اب بنیادی طور پہ یاد رہے یہاں پر صرف قرآن اور حدیث ہی مین سورس ہے رولنگس نکالنے کے لیے، اور قرآن و حدیث سے ہی قیاس اور اجماع کے بارے میں دلیل ملتا ہے. اب اس پہ نہیں جاتے کہ کیا دلیل ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے، سرسری طور پہ صرف ایک روایت پیش کر کے ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ اس پر آج اختلاف ہے نہیں. تمام مانتے ہیں کہ ہاں قرآن و حدیث حجت ہے اور اجماع بھی حجت ہے اور قیاس ضروری ہے، یہ سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر مسائل میں آپ ظاہر پہ عمل نہیں کر سکتے. وہ فیمس جو روایت ہے، مشہور روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یمن بھیجتے ہیں تو اس وقت فرماتے ہیں کہ جب تم کو کوئی مسئلہ پیش آئے اے معاذ تو تم کیا کرو گے. تو یہ ان کا قیاس تھا جو ہمارے لیے دلیل بن گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر اس پر لگ گیا، اللہ کے رسول نے اس کو ایگری کیا. وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں مسئلہ کو قرآن میں ڈھونڈوں گا، نہیں ملے گا تو پھر
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों में ढूंढूंगा, सुन्नत को देखूंगा, आपकी ज़िंदगी को देखूंगा, वहाँ भी नहीं मिला तो उम्मत के इत्तेफाक को देखूंगा, इजमा को देखूंगा। तो अल्लाह के रसूल ज़ाहिर सी बात है इसको एग्री करते हैं, और ये एक दलील है। इसके अलावा कई एक बेशुमार दलील कुरान और हदीस में मौजूद है। ठीक है, ये तो हो गया फ़िक़्ह का मुख्तसर सा जो है ना माना और मफ़हूम। अब देखते हैं कि फ़िक़्ह अप्लाई किस पर होता है। फ़िक़्ह एक्चुअली जो है ना डील्स विद द एक्शन ऑफ अ लीगली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मुकल्लफ़। ठीक है, अब एक इस्तिलाह है जो मेरे लिए मजबूरी है कि मतलब अब इसको इस्तेमाल हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुकल्लफ़ एक इस्तिलाह है। मुकल्लफ़ बहुत से लोग समझ गए होंगे जिन्होंने उसूल फ़िक़्ह लास्ट क्लास में उसूल फ़िक़्ह पढ़ा, उनको क्लिक किया होगा। मुकल्लफ़ का मतलब है जिस पर हुक्म दिया गया हो, जैसा अकीमुस्सलाह, ये अकीमुस्सलाह तर्जुमा क्या है, नमाज कायम करो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक जो नमाज कायम करो का हुक्म दे रहा है, दूसरा जिस पर कायम हो रहा है। तो मुकल्लफ़ उसको कह रहे जिस पर कायम हो रहा है। ठीक है, ये एक इस्तिलाह है। इसी तरीके से कई एक इस्तिलाह है, मैं उसका नाम मुख्तसर से उसको समझा देता हूँ, ज़रा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल एक जो नॉर्मल फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। ठीक है, कोशिश करूँगा कि एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा सकूँ। तो इसके बाद है फ़र्ज़। फ़र्ज़ एक्चुअली में FARZ हम बोल लेते हैं फ़र्ज़ उर्दू में, एक्चुअली यहाँ पर दौद है D, फ़र्द। फ़र्द का मतलब इंग्लिश में अगर आप ले इसका तर्जुमा होगा ड्यूटी, हिंदी में अगर आप ले तो इसका मतलब होगा लाजिम। इसके बाद एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होता है वाजिब। वाजिब का तर्जुमा इंग्लिश में आप करें तो आप बोल सकते हो ऑब्लिगेशन या ऑब्लिगेटरी एक्ट, और हिंदी में करें तो आप उसको भी लाजिमी बोलते हैं या ज़रूरी, इस तरीके का वर्ड ही लगता है। इसके बाद एक वर्ड है सुन्ना, एक है सुन्नत, इस्तिलाह में उसको सुन्ना कहते हैं। आप बोल सकते हैं प्रोफेटिक ट्रेडिशंस जो होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बात है। और ये जो सुन्ना है ये खुद में बहुत बड़ा इस्तिलाह है। फ़ुक़हा के दरमियान सुन्ना का बहुत सारा कैटेगरी है, मुहद्दिसीन के दरमियान बहुत सारा कैटेगरी है, लेकिन इतना है कि वो सब कैटेगरी सुन्ना का जो बुनियादी माना है कि ये कनेक्टेड अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है, वो एक है, लेकिन उसमें फ़र्दर कैटेगरीज़ है। सुन्ना का मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतअल्लिक़। ठीक है, इसके बाद एक इस्तिलाह इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं मुस्तहब। इसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में रिकमेंडेशन या लाइक्ड, जिसको पसंद किया गया हो। इसी तरीके से एक इस्तिलाह इस्तेमाल होता है मुबाह, बड़ा हा के साथ है हा, मुबाह। इसको आप आम तौर पे कहते हैं ना जायज़ है, ये नाजायज़ है, उसने चना जलेबी खा लिया तो वो नाजायज़ है। जो ये सबसे आम अल्फाज है जो बिल्कुल आम आदमियों में भी आप सुनते ही होंगे कि उसने ऐसा नमाज़ पढ़ लिया तो नाजायज़ है, फ़लाँ ने कर दिया जायज़ है, हमारे नज़दीक नाजायज़ है। तो ये वो जो मुबाह है उसको कहते हैं कि जायज़ है, परमिसिबल। ठीक है, इसके बाद एक इस्तिलाह आता है मकरूह तंज़ीही। इसको जब मिला के पढ़ेंगे तो मकरूह तंज़ीही। ठीक है, मकरूह तंज़ीही का मतलब आप बोल सकते हैं कि नापसंदीदा, ऑफेंस है लेकिन स्लाइटली ऑफेंस है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होता है मकरूह तहरीमी। इसको आप बोल सकते हैं सीवियर ऑफेंस, बहुत बुरा, या आप करीबुल हराम बोल सकते हैं इसको, हराम के करीब करीब, तो गुनहगार तो बंदा होगा। इसके बाद एक और वर्ड इस्तेमाल होता है हराम, जिसको आप बिल्कुल प्रोहिबिटेड कह सकते हैं, नाजायज़, इम्पॉमिसिबल वगैरह। बाज़ जो है ट्रांसलेटर्स ने मकरूह तहरीमी में भी इम्पॉमिसिबल का वर्ड लगाया है। ठीक है, और हराम में प्रोहिबिटेड लगाया है। बहरहाल इसका अगर माना मफ़हूम आप समझ ले तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि इंग्लिश में क्या लिखा और हिंदी में क्या लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से शर्त, जिसको आप बोल सकते हैं प्री कंडीशंस। उसी तरीके से मानी, किसी चीज़ से रोकने को कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से रुखसार, एक ओकेशन के बारे में डिस्कशन जब हो। इसी तरीके से सही का मतलब होता है वैलिड, ओके, सही हदीस, हमारी हदीस सही है, आपकी हदीस सही नहीं है, वही वाला सही। एक होता है फासिद, ये फासिद अरबी वाला है। एक होता है फ़साद, अरबी में भी फ़साद होता है, लेकिन अरबी में फ़साद अलग मीनिंग में होता है, और आज के जो लोग करते हैं, जैसा आखिरी दिन जो एक आदमी आ गया था क्लास में, फ़साद कर रहा था, वो साहिल भाई ने कहा था फ़साद कर रहा है वो, तो हाँ वो फ़साद ही कर रहा था। ठीक है, बल्कि वो तो फ़साद फिल अर्द कर रहा था। इसका ये माना नहीं आप तलवार निकाल लें, जिहाद चलो जिहाद करें, ऐसा नहीं है। तो फासिद एक इस्तिलाह है, इसका मतलब होता है करप्ट।
अब ये करप्शन नहीं है, करप्ट का मतलब होता है ख़राबी, फासिद। एक इस्तिलाह है, ये आपको आगे समझ में आएगा, जब नमाज का मसला डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये सब आपको इस्तिलाह ज़्यादा अच्छा समझ में तब आएगा जब आप एक मरतबा ये फ़िक्र पढ़ ले और थोड़ा बहुत आपको उसूल हदीस वगैरह का मुताला हो जाएगा। और फिर जब मेरा वो आप किताब पढ़ेंगे इख्तिलाफ़ और राय बैन सलफ़ फ़हमु मिनल कुरआन वल हदीस, उसमें आपको ये अल्फाज कसरत से मिलेंगे और उसमें मैंने थोड़ा बहुत डिफ़ाइन भी किया है इसको। इसके बाद एक और अल्फाज मिलेगा आपको बातिल। ये आपने जो थोड़ा सा हदीस के फ़न से जो है ना, मतलब थोड़ा सा जिनको शरफ़ और पसंद है वो ये वर्ड सुनते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं बातिल, बातिल गैर महफूज वगैरह किस्म का वर्ड। बातिल का मतलब होता है वॉइड, सिरा से, मतलब आपका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, जिसको हम कहते हैं ना कि उठा के छोड़ देने वाला बात, तर्क। हालांकि बातिल जो है वो ज़्यादा सीवियर वर्ड है तर्क से, जैसा कज़्ज़ाब जरा तर्क से ज़्यादा है, लेकिन आप समझ लें कि बातिल का मतलब भी वही आता है, लेकिन सीवियर इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने के लिए वर्ड कहा जाता है कि बातिल, ख़त्म, वो टाटा बाय बाय वाला बातिल, जाओ। इसी तरीके से एक इस्तिलाह आता है अद्वा। अद्वा का मतलब होता है किसी चीज़ को वक्त में करना। जैसे बोलता है ना कि नमाज पाँचों वक्त में मोमिनों पर वक्त बांधना व फ़र्ज़ है, उसने नमाज को वक्त में अदा किया, तो वो अदा अद्वा वही वाला है, ठीक है। बस अरबी में उसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बदल गया, लेकिन ये इस्तिलाह वाला अदा है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ नमाज का मसला नहीं है, किसी और चीज़ का भी मसला आएगा, ज़कात का भी मसला आ सकता है कि वक्त में उसने 1 साल के अंदर ज़कात दी, इस्तिलाह है। अदा का मतलब होता है वक्त में किसी चीज़ का करना, और ये शरई वक्त है। इसी तरीके से एक अल्फाज इसी के आप बोल सकते सिमिलर आता है क़दा, वो था आदा, ये है क़दा। क़दा का मतलब वो है डीले, नमाज कज़ा हो गया। उर्दू में कज़ा बोल देते हैं, लेकिन अरबी में क़दा है, ठीक है। ये भी एक इस्तिलाह है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है ईदा। अब आप सोचते होंगे क्या यार खाली दा 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 आ रहा है, तो ये आखिरी दा, ये आखिरी दा है, ठीक है, ये आखिरी दा है। एक दा है अदा, जिसका मतलब है वक्त में अदा करना। एक है क़ज़ा, जिसका मतलब है वक्त गुजारना, मतलब वक्त गुजर गया, डिले। एक है ईदा, जिसका मतलब है दोहराना, रिपीट करना। जैसा आप अगर हदीस वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ईदुस सला, नमाज को दोहराओ, तो वो वाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है ना, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब इसमें ज़्यादा मज़ीद हमको दिख रहा है लोग आईब्रोज ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा इसमें नहीं जाते ताकि कहीं बोर ना हो जाए कोई। ये इतना काफ़ी था, इतना तो आप मतलब इतना अगर इस्तिलाहात आपको याद ही हो जाए, इसका माना ही मालूम चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है, फ़र्स्ट टाइम जो क्लास कर रहे हैं।